پڑھیں گے سوشل سائنس ٹاپک دا انڈین کانسٹیٹیوشن کلاس 8. پہلے ہم دیکھیں گے بیٹا واٹ از کانسٹیٹیوشن. واٹ از کانسٹیٹیوشن. یہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ اس کو اردو میں آئین بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آئین. جیسے آپ نے نام سنا ہوگا آئین ہند، آئین کشمیر، آئین پاکستان، آئین ہندوستان. یہ سنتے ہیں نا؟ تو یہ اب سنو، میں آپ کو بتاؤں گا کانسٹیٹیوشن اس کا نام کیا ہے. The Constitution is a set of rules and principles that explain how a country is governed. It is the supreme law of the land. Every citizen and government must follow it. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے بیٹا، یہ قانونوں اور اصولوں کی ایک کتاب ہے. قانون اور اصولوں کی ایک کتاب ہے یہ. That explains how country is governed. جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ایک ملک کو کیسے چلاؤ گے، ایک ملک میں آپ کیسے حکومت قائم کرو گے، اور اس ملک کے لوگوں کی، اس ملک کی زمین کی، اس ملک کے مذہب کی، اس ملک کے لوگوں کے، اس ملک کے مختلف مذاہب، مختلف کاسٹ، مختلف ریجنوں کی آپ کیسے حفاظت کریں. It is the supreme law of the land. یہ سب سے مقدس قانون ہے زمین پر. Every citizen and government must follow it. ہر ایک شہری کو اور ہر ایک گورنمنٹ کو اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت کرنا ہے اور اسی آئین کے مطابق اس کو حکومت کرنی ہے. اس کو حکومت کرنی ہے. تو یہ ہو گیا آئین. اگر آپ کو کوئی بتائے واٹ از کانسٹیٹیوشن، آپ یاد رکھو بیٹا، the constitution is a set of rules and principles that explain how a country is governed. It is the supreme law of the land. Every citizen and government must follow it. یہاں آپ ایسے سمجھو، یہاں آپ کا ہیڈ ٹیچر بیٹھا ہے اور یہاں 5-6 ٹیچر آپ کو اور ہے. ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے. یہ ٹائم ٹیبل آپ مان لو یہ اسکول کا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ اسکول کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں ہم نے اس ٹائم ٹیبل پر فرسٹ پیریڈ میں آپ کا سائنس ہے، کتنا ٹائم ہے، کون سا ٹیچر ہے، وہ صبح سے اسی کے مطابق کلاس میں آئے گا، کلاس سے نکلے گا، اور اس طرح ڈسٹرب نہیں. اگر ہم نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، مجھے مرضی آئی میں دوسرے کلاس میں جاؤں گا، میں ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلوں گا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام کاج، ہماری ایڈمنسٹریشن اسکول کی ٹھیک نہیں چلے. اسی طرح جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے ملک کا، اسی طرح اسی کے مطابق جب ہمارا پرائم منسٹر چلے گا، ہماری پارلیمنٹ چلے گی، تو پھر ہمارا ملک بھی ٹھیک طریقے سے چلے گا. واٹ از دا انڈین کانسٹیٹیوشن. اب مسئلہ ہے ہندوستان کا آئین کیا ہے، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. دا انڈین کانسٹیٹیوشن از اے written document which lays down the framework of government, the rights of the citizen and duties of leaders in India. دیکھو ہمارا جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے یہ کیا ہے، یہ ریٹن ڈاکومنٹ ہے. یعنی یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، یہ ریٹن ہے، یہ لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، یہ تحریری طور یہ محفوظ ہے. which lays down the framework، جو ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے. ورک آف گورنمنٹ،
गवर्नमेंट की काम का गाइडलाइन से हमें देता है। राइट्स ऑफ द सिटीजन, और शहरियों के, उनके लोगों के, वहाँ के रहने वाले लोगों के क्या हुकूक हैं। एंड ड्यूटीज ऑफ लीडर्स इन इंडिया, और ड्यूटी क्या है हिंदुस्तान के लीडरों की, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो असेंबलियों में बैठते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है। और जो हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का ये आईन, हिंदुस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कब वजूद में आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लागू हो गया, और जिसको आज हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। मनाते हैं 26 जनवरी को, हाँ रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। ये वजह है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया पूरे मुल्क में, विच इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जिसका नाम है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं यौम जमहूरिया। क्या बोलते हैं? यौम जमहूरिया, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है हकीकत किसकी? 26 जनवरी की। फिर हु मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब मसला है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? बेटा सुनो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये किसने बनाया बेटा? ये नहीं, ये उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली थी, यानी बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूट किए हुए थे, उसी को असेंबली बोलते हैं। बहुत सारे नुमाइंदे इसके लिए मुकर्रर किए गए, उन्होंने इस आईन को बनाया, उसी को बोलते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस असेंबली में जो आदमी गए, जैसे हमारी असेंबली है कश्मीर में, लोलाब का एमएलए कैसर जमशेद लोन साहब है, कुपवारा का फयाज अहमद मीर साहब है, इसी तरह बाकी जगहों के जो नुमाइंदे वहाँ गए हैं, वो हमारे अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह उस वक्त भी मुख्तलिफ रीजनों के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लीडर्स वहाँ मुंतखब किए गए, उसी को बोलते हैं क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो जिन लोगों को वहाँ मुकर्रर किया गया उन्हीं को बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने ही आईन को बनाया है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसका फुल नाम है भीमराव अम्बेडकर, वाज द हेड बॉस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका बड़ा था, ये इसका चेयरमैन था। किसका? इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये चेयरमैन उस वक्त था, एंड आल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या बोलो कि ये चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उस वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसी की सरबराही में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। The Constitution Assembly had many members from different regions, religions and backgrounds, और इसमें बहुत सारे लोग थे। देखो, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत, असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स थे डिफरेंट रीजनस, यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, नॉर्थ के रीजन के भी लोग थे, साउथ के भी थे, ईस्ट के भी थे, वेस्ट के भी थे, मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे, रिलीजियस मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, एंड मुख्तलिफ बैकग्राउंडों के लोग थे, यानी मुख्तलिफ जातों के लोग भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब इसके फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो देखो बेटा। इट इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का जो
ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन है एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है इन ए रिटन मैनर, इन राइटिंग वर्ल्ड में ये सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा हुआ है। सोरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोरीन बहुत आला किस्म का है, सबसे आला है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। फेडरल स्ट्रक्चर इसका क्या है, पार्लियामेंट में जो पावर्स होते हैं, पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर मरकज के जो भी कानून है वो शेयर किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, और इस तरह जो ऊपर के कानून है वो नीचे चीफ मिनिस्टर के हवाले किए जाते हैं और वो कानून वहाँ नाफिज करते हैं। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हुकूमत कौन बनाते हैं? लोग वोट डालते हैं, अपने नुमाइंदे बनाते हैं, फिर एक गवर्नमेंट बनती है एंड इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। फिर यही गवर्नमेंट जवाबदेह होती है कहाँ? पार्लियामेंट में। यानी कोई हुक्मरान बना वो आजाद नहीं है, जो उसको मर्जी है वो अपना काम खुद करेगा, नहीं, उसको पार्लियामेंट वहां पूछता है आपने कौन सा काम किया, सही किया, गलत किया है, और जवाब देना है उसको पार्लियामेंट में। फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स आर गिवन इंपॉर्टेंट राइट्स लाइक, और लोगों को बहुत अहम हुकूक दिए गए हैं। मसलन क्या है? राइट टू इक्वलिटी, हर एक बराबर है मुल्क में, हुकूमत के सामने, लोगों के सामने हर एक बराबर है, कोई अलग अलग नहीं है। कोई वहाँ बड़ी जात का तो उसको एक वैल्यू है, छोटी जात का है कोई तो उसको एक वैल्यू है, ऐसा नहीं है, सब बराबर है। राइट टू फ्रीडम, हर एक आजाद है, हर एक आजाद है। राइट टू एजुकेशन, हर एक को तालीम का हक है, कोई तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। मगर साथ ही बेटा मैं ये भी बताऊंगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो अगर सरस क्लासेस को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। मगर अफसोस है कि आप लाइक भी नहीं करते, क्या हो गया आपको? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और हर एक को हक है कि वो आवाज उठाए अगर उसके साथ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक को मजहब की आज़ादी है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को आज़ादी है, वो किस मजहब को फॉलो करे, किसको नहीं करे, उसको कोई रोक टोक नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी इजाज़त है, हक है, अगर इसमें किसी कानून में जाती है उसको वो इलाज भी कर सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स है, उनको भी इंशाल्लाह आपके सामने सुबह बयान करूंगा। आज इतना ही है। खुदा हाफिज़।